Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to take up a lesson of CBSE Board Class 7, lesson number 5, Quality. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. So Mr. Giesler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. So read the story to see how he devotes his life to his art. So this is before you read the story, this part I have said you before you read the story. So it is a very important question. Can a shoemaker be called an artist? Of course, yes. A shoemaker is an artist because a shoemaker is a person who makes shoes which fits exactly our legs and we feel comfortable while walking. Suppose if the shoes doesn't fit us, we won't be able to walk. Suppose if the shoes bite us, we won't be able to walk. So shoes are again a very important part of our dressing. So someone who makes nice shoes for us, beautiful shoes for us, comfortable shoes for us, then of course they are an artist. So same way, the question asked over here is, can a shoemaker be called an artist? Yes, of course, a shoemaker is called an artist because it requires great skill in this trade also. Now this story is about Mr. Giesler, a German shoemaker who has settled in London. Mr. Giesler, he is a German shoemaker, he has settled in London. He is a very perfect artist. He cannot look at his work done in a bad manner. He wants to do his work in a very proper manner, in a perfect manner, and therefore he is said to be a perfect artist. This story will tell us, the author have narrated this story, and this story will tell us how important his work was for the shoemaker, and he was not able to earn much in this work, and finally he died, and this moved the heart of the author. Though one cannot do anything for these people, but I think we should always come forward and help these people who make handmade things and who are perfect in their things. At least we can have some patience and some respect for them. So before we go ahead with the chapter, only one request, please do like the video and also do subscribe my video channels and share it with your friends. One important thing, with this lesson, you will be getting a link of question answers in the description box, so you can check that. The entire question answers have been covered of the chapter. So let's start. Quality. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. That means ये जो ऑथर है ये कह रहा है कि मैं इस शू मेकर को बहुत, जब मैं यंग था, बहुत यंग एज का था, एक्सट्रीम यूथ, दैट मीन्स जब मैं बहुत यंग था, व्हेन आई वाज वेरी यंग, वेरी स्मॉल, फ्रॉम दैट एज आई नो दिस शू मेकर बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. मैं उससे इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो मेरे फादर के बूट्स बनाते थे, इसलिए मुझे पता है उनके बारे में. और वो कहाँ रहते थे ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपने बड़े भाई के साथ में रहते थे उनके शॉप में, विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट. बाय स्ट्रीट मतलब एक छोटी सी गली में, राइट, जो बड़े रास्ते में जो छोटी गली निकलती है उसे हम बाय स्ट्रीट कह सकते हैं. इन अ स्मॉल स्ट्रीट, फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. और ये लंदन के फैशनेबल पार्ट में एक छोटी सी गली में ये दुकान उनकी थी. द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन. शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन मतलब ये शॉप जो है औरों से थोड़ी अलग थी, हटके थी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम्स ऑफ गीजलर ब्रदर्स. जैसे हम नॉर्मली शॉप्स में देखते हैं, बड़े बड़े शॉप्स में बड़े बड़े नाम लिखे रहते हैं, बैनर्स लिखे रहते हैं और बहुत कुछ लिखा रहता है डेकोरेटिव वे में. बट इनके शॉप के ऊपर तो सिर्फ उनका एक नाम लिखा था, वहाँ पे गीजलर ब्रदर्स, और उसके अलावा कुछ नहीं. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स. एंड इन द विंडो मतलब जो शॉप का डिस्प्ले साइड रहता है, जहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, कांच का जो लगाया रहता है, और अंदर जो भी शॉप में चीज़ें बिकती है उसका डिस्प्ले रखा जाता है कि हम ये चीज़ें बेच रहे हैं शॉप में. तो कुछ पेयर ऑफ शूज़ ही वहाँ पे रहते थे, हमेशा ज़्यादा नहीं रहते थे. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड. तो ये जो शू मेकर थे
ये वही बनाते थे जो ऑर्डर किया जाता था, यानी ही मेड शूज ऑन ऑर्डर्स ओनली, ऐसे ही बनाकर नहीं रखते थे। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी वो बनाते थे वो हमेशा एक प्रॉपर फिटिंग वे में हमको आ जाते थे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें शूज लूज हो गया या टाइट हो गया। टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड seem to me then and still seems to me mysterious and wonderful। तो इस टाइप के बूट्स जब वो उस वक्त बनाते थे और तब भी मुझे मिस्टीरियस लगता था, बहुत वंडरफुल लगता था कि कैसे बना लेते हैं, और आज भी लगता है कि कितना मिस्टीरियस है, कैसे बना लेते हैं ये, बहुत ही स्किल्ड वर्क चाहिए इसके लिए, फिर भी ये बना लेते हैं। आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot, "Isn't it awfully hard to do, Mr. Giesler?" And his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard, "It is an art." So अभी उसे याद आ रहा है, जब पहले की बात, जब बचपन की बात उसे याद आ रही है शू मेकर के बारे में, जब वो बात कर रहा है कि एक बहुत ही शर्माई हुई सी आवाज़ में एक बार उन्होंने इस शू मेकर से कहा था कि क्या तुम्हें ये डिफ़िकल्ट नहीं लगता काम, कितना डिफ़िकल्ट है ये। और ये किस तरीके से बोल रहे थे, जब हम देखो कोई भी शू के शॉप में जाते हैं शू खरीदने के लिए, तो हम एक सोफ़ा पे या चेयर पे बैठ जाते हैं, और जो भी हमें शू ट्राई करवाता है तो हम उसको अपना पैर आगे देते हैं। स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, दैट मीन्स मैं अपना पैर जो है, सी दिस लाइन, स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, यानी मैं अपना पैर उस शू मेकर को दिखाता हूँ कि मुझे इस साइज के पैर दिखाते हैं, तो साइज देखते हैं ना शू मेकर। सो वो बस ये पैर दिखाते समय उस वक्त एक छोटा सा शाय रिमार्क ना, उसको एकदम शर्माते हुए उसने बोला, आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगता, ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गीजलर? एंड हिज आंसर, और मिस्टर गीजलर कैसे आंसर देते हैं, विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बेड, यानी अच्छी खासी दाढ़ी थी उसको जो रेड कलर की थी, और उस दाढ़ी में से हल्की सी उसकी स्माइल दिखाई दे रही थी, और वो उस स्माइल से कह रहे थे, इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट। इसका मतलब है कि ये एक कला है, इट इज़ एन आर्ट, सेड विद अ जर्मन एक्सेंट, जो अभी मैंने बोल के बताया। हालांकि परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। अब वो कह रहे हैं कि उनके पास जो हम फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाते थे, क्यों, बार बार हम क्यों नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनके बनाए हुए बूट इतने लंबे चलते थे कि हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। नॉर्मल भी हम कोई शूज़ लेते हैं बियॉन्ड द टेम्पररी, वो भी एक समझो 4-5 महीने 6 महीने चल जाते हैं, या किसी किसी के 2-3 महीने चलते हैं, डिपेंड्स ऑन द यूजेज। ज़्यादा रफ यूज़ है तो जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं, तो हमको जल्दी दूसरे जूते लेने पड़ते हैं। बट अदरवाइज उनके बनाए हुए बूट तो इतने लंबे चलते हैं कि जल्दी से हमको दुकान में जाने का मौका ही नहीं मिलता है। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, यानी वो पता नहीं क्या जादू उसके अंदर करते हैं उन बूट्स में कि वो बूट्स चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। One went in not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited। मतलब वन वेंट इन, एक बार अगर आप अंदर जाते हो, जैसे हम नॉर्मल शॉप्स में जाते हैं तो बहुत हसल रहता है, बहुत आवाज़ रहता है, शोर शराबा रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बट इस शॉप में वैसी कोई बात नहीं है। जब आप अंदर जाते हो, नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, मतलब बाकी शॉप्स की तरह नहीं है, बट रेस्टफुली आप आराम से रिलैक्स होकर इस शॉप में जा सकते हो, और आप इस तरह से अंदर जाते हो जैसे कोई चर्च में जा रहा हो, टेम्पल में जा रहा हो। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और वहाँ पर एक सिंगल वुडन चेयर थी, लकड़ी की बनी हुई कुर्सी थी, और जो भी अंदर जाता है एकदम वो वहाँ जाके बैठ जाता है और वेट करता है। अ गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, अ लिटिल बेंट इन लेदर एप्रन with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। तो देखो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया है वो शू मेकर कैसा था। अ गटरल साउंड, गटरल साउंड जैसे हम खराश करते हैं ना कुछ इस तरीके से, तो वो जो खराश करते हैं जिसे हम हार्श एंड ग्रेटिंग कह सकते हैं, ऐसी साउंड होती है, ऐसी साउंड वो करता है। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और जब नीचे में भी ऐसा होता है ना कि शॉप थोड़ा ऊपर भी होता है,
बेसमेंट मतलब बेस में तो जो शॉप है उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर भी कभी कभी एटिक टाइप में रहता है जहाँ पर लोग काम करते हैं। तो वैसा ही उसका भी शॉप में वैसे बना हुआ था, ऊपर नीचे। तो जब ऊपर से जब कोई वेट करता है तो वो ऊपर से नीचे आते हैं, क्योंकि ऊपर शू मेकिंग का काम ऊपर चलता है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त जो आवाज़ आती है टिप टैप, तो डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे, टिप टैप ऑफ ए स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स। और वो जो स्टेयर्स भी थे, जो सीढ़ियाँ भी जो थी जहाँ से वो नीचे आ रहे थे, वो भी नैरो थी, संकड़ी थी और वुड की बनी हुई थी। तो वहाँ से उतरते समय तो ठप टप टिप टैप ऐसे आवाज़ आती है। तो एक तो वो गटरल साउंड कर रहा है, प्लस टिप टैप नॉइज आ रही है उसके नीचे उतरने की। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर विदाउट कोट, और वो किस तरीके से आके खड़ा होता था किसी के सामने, विदाउट कोट, यानी कोट पहना हुआ नहीं रहता था। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट अ लिटिल बेंट, थोड़ा सा झुका हुआ खड़ा रहता था, इन लेदर एप्रन। और जो एप्रन यानी हम जो गले में पहनते हैं सामने की तरफ, ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हो, जैसे खाना बनाने के टाइम पे शेफ लोग पहनते हैं ना एक एप्रन, उसे हम एप्रन कहते हैं। एक फ्रंट क्लॉथ जो बोलते हैं, जिससे हम जब हम काम करें तो हमारे जो कपड़े हमने पहने वो गंदे ना हो। सो इन लेदर एप्रन, लेदर का एप्रन पहना था, वो थोड़ा सा बेंट वहां पे खड़ा हो जाता है, विथ स्लीव्स टर्न्ड बैक, और जो उसके स्लीव्स है वो ऊपर फोल्ड कर लेता है, टर्न्ड बैक, ब्लिंकिंग, और थोड़ी सी आंखें ब्लिंक करने लगता है, एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स। और वो इस तरह से ब्लिंकिंग करता है ना जैसे मानो अभी अभी जागा हो, कोई सपना देखते हुए, बूट का सपना देख रहा था और अभी अभी जागा है। तो इस तरह का ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑथर ने, नरेटर ने उस शू मेकर के बारे में किया है। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गीजलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और जब भी मैं उनके पास जाता था मैं हमेशा उनसे यही कहता था, हाउ डू यू डू मिस्टर गीजलर, मतलब आप कैसे हो मिस्टर गीजलर, क्या आप मेरे लिए एक पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स बना दोगे। मतलब रशिया का जो लेदर आता है उस लेदर से आप मेरे लिए एक पेयर ऑफ बूट्स बना दोगे। नॉर्मली बूट्स लेदर से ही बनते हैं, लेदर मटेरियल से बनते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. अब ये जो है पार्ट मैं आपको वापस से बता देती हूँ। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव, यानी जब भी मैं उनको पूछता था कि क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर का बूट्स बना दोगे, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकलते थे मुझे वहाँ छोड़कर, और उसी शॉप के दूसरे पोर्शन में चले जाते थे। और वहाँ से, और जब तक वो दूसरे पोर्शन में जाते थे तब तक मैं उस वुडन चेयर पे रेस्ट करता रहता था। आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। अभी इंसेंस मतलब तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, ओके, अगरबत्ती, लेकिन ये अगरबत्ती नहीं है, अगरबत्ती से तो खुशबू आती है। जो लेदर होता है उसकी भी एक अजीब सी खुशबू आती है। अगर आप लेदर शॉप में जाओगे ना तो आपको एक पर्टिकुलर स्मेल, टिपिकल स्मेल, लेदर का स्मेल रहता है, वो आपको मिलेगा वहाँ पे स्मेल करने के लिए। तो वो ऑथर कहता है, नरेट कहता है कि जब मैं उसे कहता हूँ मेरे बूट्स बना दोगे क्या, तो वो कहीं जाता है, तो जब तक वो दूसरे पार्ट ऑफ द शॉप में जाता है तब तक मैं वहाँ बैठकर इस लेदर का इंसेंस मतलब स्मेल लेता हूँ। तो इस लेदर के स्मेल को इंसेंस के स्मेल के साथ यहाँ पे कंपेयर किया है। ऑफिस ट्रेड, ट्रेड मतलब जो बिजनेस करता है, अभी लेदर का बिजनेस है शूज बनाने का, तो लेदर का ही ट्रेड है, ओके ना। इंसेंस ऑफिस ट्रेड, जो ट्रेड करता है उसकी खुशबू। सून ही वुड कम बैक, और मैं जब तक बैठा हूँ तो थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाता है, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और अपने हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का पीस पकड़े हुए आता है। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और उसी को देखते देखते वो कहता रहता है, वॉट अ ब्यूटिफुल पीस, वॉट अ ब्यूटिफुल बीस। देखो यहाँ पे ट को उसने ड बना दिया है और प को उसने ब बना दिया है। वॉट अ ब्यूटिफुल बीस, वो जर्मन लैंग्वेज में इस तरह से बात कर रहा था। तो ये वो चीज़ है, वो ना एक तो वो खुद लेकर आता है वो लेदर गोल्डन ब्राउन कलर का, और उसी को देखता रहता है और बोलता है कितना सुंदर पीस है ये। When I too had admired it, he would speak again, when do you want them? और जब मैंने भी उस लेदर पीस को अच्छी तरह से देख लिया तो वो मुझे फिर से पूछता है कि तुम्हें कब चाहिए, when do you want them? कब चाहिए, when do you want them? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. और मैं आंसर देता था कि जितने जल्दी आप कन्वीनियंटली दे सकते हो, मतलब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट फेस एनी ट्रबल्स इन कंप्लीटिंग द वर्क ऑफ दिस शूज। And he would say, tomorrow fortnight
और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। तो ये लोग क्या कहते थे, ये क्या कहता था, टुमारो फोर्टनाइट, मतलब कल फोर्टनाइट के दिन मैं आपको दे दूंगा। फोर्टनाइट मीन्स मिड ऑफ द मंथ हम बोल सकते हैं, 15 डेज जो पास हो जाते हैं फर्स्ट मंथ के, उसे हम फोर्टनाइट कहते हैं। तो टुमारो फोर्टनाइट यानी कि या तो मैं कल दे दूं, और अगर उसका भाई होता था तो वो कहता था आई विल आस्क माई ब्रदर, ब्रदर मीन्स ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, और फिर मैं थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाता था। गुड मॉर्निंग मिस्टर गीजलर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, and as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. तो यानी जब मैं वापस से उनको थैंक यू और गुड मॉर्निंग बोलकर निकलता था, तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ गेट से, तो तब भी वो जो है मिस्टर गीजलर वो उस लेदर को ही देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, उस लेदर को ही देख रहे हैं। और जैसे ही मैं बाहर निकलने की तरफ जाता हूँ, उस वैसे ही मुझे उनके वापस से ऊपर जाने की आवाज़ आती है कि अब वो लग गए हैं अपने काम पे, ऊपर जा रहे हैं और अब तुरंत अपने काम में लग जाएंगे, ड्रीम ऑफ बूट्स में। देखो ये यहाँ पे मिस्टर गीजलर खड़े हैं, यू कैन सी ओवर हियर मिस्टर गीजलर इज स्टैंडिंग, ओके, ही इज मिस्टर गीजलर। और ये आप लेदर पीस इनके हाथों में देख सकते हो, और ये नरेटर है। ये शूज, ये देखो पैर, इसने यंग पैर अपने आगे रखे हैं देखने के लिए, और ये देखो इस तरह का ये एप्रन पहना हुआ है, ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है, दिस इज द एप्रन, ओके। Let's move ahead. I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Giesler, that last pair of boots creaked, you know. अब ये नरेटर बोल रहा है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने उनको ऐसा कहा था कि मिस्टर गीजलर, जो लास्ट पैर आपने मुझे बनाया था वो थोड़े से उनमें तराड़े आ गई है, क्रीक्ट आ गई है, मतलब फटने लग गए हैं वो। तो नरेटर आज भी वो दिन उसको याद आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने ये कहा तो ये जो शू मेकर है गीजलर, ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, वो मेरी तरफ थोड़ी देर देखता ही रह गया बिना रिप्लाई किए, ये सोच के कि शायद मैं अपने वर्ड्स वापस ले लूंगा, यानी कि शायद मैंने कहा कि अरे नहीं नहीं मैंने गलती से कह दिया हो, ऐसा वो सोच रहे थे कि मैं ऐसा कहूँ। लेकिन एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, है ना, या तो मैं अपने शब्द वापस ले लूँ या फिर उनको थोड़ा से बेटर कर दूँ, वो ये सोच रहे थे। एंड देन सेड इट शुडंट हैव क्रीक्ड इट, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि अरे उसको क्रीक नहीं होना चाहिए था, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, ये यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, उसको नहीं फटना चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया, हाँ वो फटे हैं। यू गॉट देम वेड बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, तो वो कहते हैं कि तुमने उनको गिल्ले कर दिए होंगे, बिना जब तक वो पानी में आए उससे पहले ही तुमने उन्हें गिल्ले कर दिए होंगे। आई डोंट थिंक सो, वो कहता है कि नहीं मुझे तो ध्यान नहीं है। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग। और फिर बाद में उन्होंने अपनी आंखें जो है, नजरें जो है झुका ली, और एज इफ वो सोच रहे हो कि उस बूट्स के बारे में जब उन्होंने उसे बनाया होगा। और उनकी ये स्थिति देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग, कि मैंने ये चीज़ उनके सामने यहाँ पे कही, सीरियस चीज़ मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि उनके काम में अगर कोई कमी बताता है तो उनका दिल बहुत दुखता है। तो ये उस तरह के इंसान थे, तो उसे बहुत दुख हो रहा था ऑथर को, नरेटर को यहाँ पे, कि क्यों मैंने ऐसा कहा। सेंड देम बैक, वो बोला, फिर मिस्टर गीसलर बोला कि उन्हें वापस भेज दो। सेंड देम बैक, ही सेड, आई विल लुक एट देम, मैं उनको फिर से देखता हूँ। जम बूड्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। तो वो कहते हैं कि कुछ बूट्स जो है बर्थ से ही गंदे होते हैं, मतलब कुछ लेदर पीसेस ऐसे होते हैं कि जो ओरिजिनली ही दे आर नॉट सो गुड। तो इस टाइप का हो सकता है कि उनसे फिर चीज भी गंदी बनी होगी। तो अगर मैं कुछ नहीं कर सकता उनके साथ में, अगर रिपेयर नहीं कर सकता, तो मैं उसके पैसे तुमसे नहीं लूंगा। आई विल टेक ऑफ योर बिल, आई टेक देम ऑफ योर बिल, मतलब वो तुमसे जो पैसे लेने उस जूते के वो हम नहीं लेंगे। once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। मतलब सिर्फ एक बार समझो ऐसा हुआ रहेगा कि मैं एब्सेंट माइंडेडली उनके शॉप में चला गया एक दूसरे पेयर ऑफ बूट्स पहन के, जो मैंने किसी बड़ी फर्म से लिया था और इमरजेंसी में मुझे लेना पड़ा था क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, उस वक्त मैंने ले लिया था।
तो ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। तो उन्होंने मेरा ऑर्डर मुझे बिना कोई लेदर पीस दिखाए ले लिया, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उनकी नज़रें जो है मेरे जूतों के ऊपर गड़ी हुई थी। पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। इंफीरियर क्यों? क्योंकि जो जूते मैंने पहने थे वो बहुत ही लो क्वालिटी के लेदर के बने हुए थे। तो वो उस लो क्वालिटी के लेदर को देख रहे थे जो मेरे फुट को कवर किए हुए थे। एट लास्ट ही सेड, दोज आर नॉट माई बूट्स। और फिर बाद में लास्ट में वो कहने लगे कि ये मेरे जूते नहीं हैं। एज इफ उनको अपने बनाए हुए जूते बराबर ध्यान रहते हैं कि उन्होंने कौन से जूते बनाए हैं और कौन से नहीं बनाए हैं। तो वो तुरंत कह दिए उन्होंने कि ये जूते मेरे नहीं हैं, दोज आर नॉट माई बूट्स। यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है ना, दोज आर नॉट माई बूट्स। The tone was not one of anger, nor of sorrow, nor even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. अब ये जो इन्होंने कहा does are not my boots, ये जो टोन कोई गुस्से का टोन नहीं था, कोई दुख का टोन नहीं था, ना ही कोई जेलसी था, बट कुछ तो था जिसकी वजह से मेरा खून मानो जम गया हो। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बुरा लगा कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया दूसरी जगह से जूते लेकर। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. तो वो नीचे झुके, उन्होंने मेरे जूतों के उस पार्ट पे हाथ लगाया, प्रेस्ड फिंगर, एक फिंगर प्रेस की प्लेस पे जहाँ पर बूट जो है कंफर्टेबल नहीं था, मुझे चुभ रहा था। कई बार ऐसे होता है कि हम शूज़ लेते हैं, या तो आगे का पैर हमारा प्रॉपरली फिट नहीं होता है या पीछे से हमें टाइट होता है। तो नॉर्मली तो आगे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आगे नहीं जाएगा तो पीछे भी नहीं जाएगा। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था वहाँ पर उन्होंने ऐसा फिंगर से टच किया। इट हर्ट्स यू देयर, है ना, इट हर्ट्स यू देयर, दैट मीन्स इट हर्ट्स यू देयर। ये ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि ये यहाँ, वो फिंगर लगा के देख रहे हो, बोलते ये यहाँ तुम्हें हर्ट कर रहे हैं। ही सेड, दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब दोज बिग फर्म्स, ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और फिर मानो जैसे कुछ उनको एक बोलने का मौका मिला है, या कहीं पर शुरुआत हो गई है वो चीज़ बोलने के लिए, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया बोलना कि ये बड़े बड़े फर्म्स जो हैं उनको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। और ये उन्होंने लंबा और बिटरली कहा। बिटरली मतलब कड़वे स्वरों में कहा। It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of this trade. और ये फर्स्ट टाइम था जब मिस्टर गीजलर जो है, जो तकलीफ़ें उनको सहनी पड़ती है इस ट्रेड में, वो उन्होंने उन तकलीफ़ों के बारे में फर्स्ट टाइम उसके साथ में डिस्कस किया, ये चीज़ उन्होंने बताई। They did it all, he said. They get it by advertisement, not by work. तो वो बोलते हैं they get it all, मतलब उनको सब मिल जाता है, सारे कस्टमर्स उनके पास चले जाते हैं, सब उनसे खरीदते हैं। ही सेड दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, और वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से सारे कस्टमर्स आते हैं, उनके काम से नहीं आते हैं, नॉट बाय वर्क। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो हमसे भी लेकर जाते हैं। हु लव अवर बूट्स, जो हम हमारे बूट से इतना प्यार करते हैं, हम उनको प्यार से इतना बनाते हैं, हमसे भी वो लेकर जाते हैं। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैड नो वर्क, तो ये तब आता है जब मेरे पास कोई काम नहीं है। एंड एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी, और हर साल मेरे पास काम कम 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 होता जाता है। तो हमारे पास भी जो भी बूट है वो लेके चले जाते हैं। आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बेड। तो ऑथर नरेटर जो कहता है कि आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, मैंने आज से पहले कभी ऐसा इस तरह का नोटिस नहीं किया, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, कि इन लोगों को इतना बिटर स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना कड़वी चीज़ें हैं इनके साथ में होती है, कड़वा स्ट्रगल इनको करना पड़ता है। और इस स्ट्रगल में इनके कितने सारे बाल जो है सफ़ेद हो गए हैं। देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, मतलब उसकी जो रेड बियर्ड थे उसमें वाइट ग्रे हेयर्स उनको दिखने लग गए थे। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, मैंने बहुत कोशिश की उनको वो सर्कमस्टेंस यानी सिचुएशन समझाने की, कि मैंने किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टेंसेस में या किन हालातों में ये जूते खरीदे। मेरी मजबूरी थी ये जूते खरीदना, मैं चाहता नहीं था वहाँ से खरीदना। मैंने अपने बेस्ट तरीके से उस मिस्टर गीजलर को एक्सप्लेन किया।
but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन उनका फेस देखकर मुझे इतना बुरा लगा, मैं इतना डीपली मूव्ड हो गया कि अगले कुछ मिनटों में मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स उनको दे दिए, क्योंकि मुझे उन पर दया आ रही थी, पिट्टी हो रही थी उनके, क्योंकि उनको काम में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इसी वजह से मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी और मैं चाहता था कि उनको किसी तरीके से वर्क मिले, काम मिले, इसीलिए मैंने उन्हें बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर दे दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो इतने लंबे समय तक चले, एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। यानी इतने बूट्स ऑर्डर दे दिए कि वो बूट्स जो है करीब करीब 2 साल तक उसके चले, और 2 साल तक उसको कोई भी बूट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. अब बहुत महीने निकल गए जब मैं वापस से दोबारा शॉप में गया, और अब जब मैं शॉप में गया तो उसका बड़ा भाई था, मतलब मिस्टर गीजलर के बड़े भाई थे, जो एक पीस ऑफ लेदर लेकर खड़े थे। Well, Mr. Giesler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो अभी ये आके पूछता है, वेल मिस्टर गीजलर, आप कैसे हैं? ऑथर पूछता है नरेटर। तो हाउ आर यू? तो वो मेरे पास में आया और मुझे देखा ऐसे, ही पियर्ड एट मी, और उसने कहा आई एम प्रीटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक ठाक हूँ, आई एम प्रीटी वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो है वो मर गया, ही इज नो मोर, एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजड एंड वॉर्न। और मुझे ऐसे लगा कि अरे हाँ, ये तो वही है शू मेकर जो जिससे मैं बूट बनवाता था, ये उसका बड़ा भाई नहीं है। पहले उसे क्या लगा ये बड़ा भाई है, लेकिन वो बड़ा भाई नहीं था, ये तो वही शू मेकर था, और उसका बड़ा भाई जो है उसकी डेथ हो गई थी। एंड नेवर बिफोर हैड, क्योंकि वो जो है बहुत ही एजड दिखने लग गया था, वैन दिखने लग गया था। एजड एंड वैन मतलब थोड़ा सा टैंड हो गया था। एंड नेवर बिफोर आई हैड हर्ड हिम मेंशन्ड हिज ब्रदर, और मैंने आज तक कभी भी उसके मुंह से उसके ब्रदर के बारे में नहीं सुना था कि उसने अपने भाई के बारे में बात की हो। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। तो वो बोलता है, ओह ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, आई एम सो सॉरी, आपके ब्रदर नहीं रहे। येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज डेड। तो मिस्टर गीजलर कहते हैं, येस ही वॉज अ गुड मैन बट ही इज डेड, बट स्टिल ही मेड गुड बूट्स ऑल्सो, वो ये भी बताते हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. तो अब ये जो है वो अपना सर को खुजाता है, ये जो मिस्टर गीजलर है वो अपने सर पे हाथ रखता है, where the hair had suddenly gone as thin, जहाँ पर उसके बाल जो है, सर के बाल बहुत ही पतले हो गए थे, as it had been on that of his poor brother, और इसी टाइप के बाल उनके ब्रदर के भी थे, टू इंडिकेट। और तो मैं उन्हीं बालों से ही समझता था, जिसके कम बाल होते थे तो वो उसका बड़ा भाई था, और जिसके ज़्यादा बाल थे वो ये था, लेकिन अब तो इसके भी बाल कम हो गए हैं। सो आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? अब वो पूछता है कि आपको कोई बूट्स चाहिए, एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और वो एक लेदर जो है मुझे दिखाता है। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, ये एक बहुत ही अच्छा पीस है, लेदर का पीस है जो उसके हाथ में होता है, वो बताता है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, और मैंने बहुत सारे पेयर्स जो है ऑर्डर किया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और इस बार जो मैंने ऑर्डर्स दिए उनको बहुत लंबा समय लग गया आने के लिए, बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर था। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, और हम तो ऐसे ही नहीं इनको पहन सकते थे। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और उसी के बाद में अब्रॉड चला गया। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60 and I came back to the one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. यानी अब जो है ये ऑथर जो है, नरेटर जो है, ये अब्रॉड चला गया था। मतलब ये जो एक बार जो उसने सेवरल शूज़ ऑर्डर किए, उसके बाद में वो ऑर्डर अब्रॉड चला गया था, और उसके बाद जब वो आया, साल भर कुछ हुआ रहेगा, तो फर्स्ट शॉप में जो वो गया था वो था इसके ओल्ड फ्रेंड की, दैट इज़ मिस्टर गीजलर के फ्रेंड की। एंड जब वो गया था तब मिस्टर गीजलर 60 ईयर्स के थे, और जब वो आया है तो मिस्टर गीजलर 75 के थे, यानी ऑलमोस्ट 15 ईयर्स उसने अब्रॉड में निकाले हैं, स्टडीज़ किए हैं।
पिंच्ड एंड वॉर्न, यानी पूरी तरीके से झुर्रियाँ जो है उनके शरीर पे आ गई थी. हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और ये जेन्युइनली मुझे पहचान ही नहीं पाए. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैग डाइन. यानी वो पूछ रहे हैं कि आपको कोई बूट्स चाहिए क्या. ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली, और उसने ये भी कहा कि मैं बहुत जल्दी से वो बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि ये स्लैक टाइम चल रहा है, यानी कि अभी ये सीजन का टाइम नहीं है, तो मैं खाली हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं फटाफट आपके लिए ऑर्डर बना दूंगा. आई आंसर्ड प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड, एवरी काइंड. तो मैंने उसको आंसर किया, हाँ प्लीज़ मुझे हर टाइप के बूट चाहिए, जो किसी भी समय, हर समय, मतलब ऑल सीजन टाइप बूट्स चाहिए, अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग बूट्स चाहिए, या अलग अलग ओकेशंस के लिए हम बोल सकते हैं ऑफ ऑल टाइप्स, जैसे फॉर्मल्स है, कैजुअल्स है, पार्टी वेयर है, इस टाइप के मुझे बूट्स चाहिए. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, और मैंने जो बूट्स ऑर्डर दिए थे वो एक इवनिंग को वो मेरे पास आ गए. वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और एक एक करके मैंने उन सबको ट्राई किया. इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड. और शेप में, फिनिश में, क्वालिटी में वो बेस्ट थे जो उसने आज तक बनाए थे. आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड्स. तो मैं नीचे गया, मैंने एक चेक लिखा उनके लिए, और मैंने खुद ने वो चेक को पोस्ट किया अपने हाथों से. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. एक हफ्ता भर पास हो गया और मैं उसी स्ट्रीट से वहां से गुजरा, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके उनको बता दूं कि वो बूट्स जो उन्होंने मुझे बना के दिए वो कितने बढ़िया तरीके से मुझे आए हैं. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन. लेकिन जब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां उनकी शॉप होती थी, अब उनका नाम वहां नहीं था, गिजलर ब्रदर्स वहां नहीं लिखा हुआ था. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, और मैं अंदर बहुत ही डिस्टर्ब कंडीशन में दुकान के अंदर गया. तो इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, और उस शॉप में एक यंग मैन खड़ा था विद एन इंग्लिश फेस, यानी कि वो इंग्लिश लग रहा था, नॉट अ जर्मन वन. सो मिस्टर गीजलर इन, आई सेड. तो मैंने पूछा क्या मिस्टर गीजलर है अंदर. नो सर, ही सेड. नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर. तो वो मैन कहता है कि नो सर, ही इज़ नॉट देयर, बट हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमको खुशी होगी इस बात के लिए. आपको जो चाहिए आप बता दीजिए, हम वो ऑर्डर लेते हैं, हमने ये शॉप्स ले ली है. येस येस, आई सेड, बट मिस्टर गीजलर. तो उसने कहा ठीक है. ऑथर कहता है ठीक है नरेटर, कि ओके ओके आपने ये शॉप ले ली है, बट मिस्टर गीजलर कहाँ है. ओह, ही आंसर्ड, डेड. तो वो इंग्लिश मैन आंसर कर रहा है, ओह मिस्टर गीजलर, ही इज डेड. डेड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक. तो वो बोलता है अरे मैंने तो उनसे बूट्स अभी लास्ट वेडनेसडे वीक ही तो मुझे मिले थे. देखो यहाँ पे ये नया इंग्लिश मैन ये दिख रहा है विथ न्यू थिंग्स ऑन द डिस्प्ले, एंड हियर इज द मैन, द नरेटर. ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ. तो वो इंग्लिश मैन कहता है कि ओ वो पुअर ओल्ड मैन, उसने तो अपने आप को भूखे मार दिया. स्लो स्टार्वेशन, खाता नहीं था ना, रोज रोज थोड़ा थोड़ा ही खाता था या नहीं खाता था, तो धीरे धीरे भूखे रह रह के वो मर गया. द डॉक्टर कॉल्ड इट, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये भूख के कारण ही मरा है. यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, वो इस तरह से जाता था काम पे, उसको खाने पीने का होश भी नहीं रहता था. वुड कीप द शॉप ऑन, शॉप चालू रखता था पूरा टाइम. वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, इसके दुकान में कोई नहीं आता था सिवाय उसके बूट्स को कोई नहीं हाथ लगाता था. वेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम, और जब भी उसको कोई ऑर्डर मिलता था वो काफ़ी टाइम लगाता था उन बूट्स को बनाने के लिए. पीपल वोंट वेट, लेकिन लोगों को कहाँ टाइम है, कोई वेट नहीं करता था इतना टाइम तक. ही लॉस्ट एवरीबडी, तो धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे कस्टमर्स जो हैं चले गए. एंड देयर हिड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो वहीं बैठा रहता था, अपने जो भी जूते रहते थे बनाता रहता था. आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, और उनके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि उनके जैसा बूट तो पूरे लंदन में कोई नहीं बना सकता है. बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन आज की तारीख में कॉम्पिटिशन देखो. ही नेवर एडवर्टाइज्ड, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, वो कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था, लेकिन जो भी जूते बनाया उसने बेस्ट से बेस्ट लेदर यूज़ करके बनाया, और खुद ने बनाया, कोई मशीन नहीं, कोई नौकर नहीं. वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़. तो और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके इस आइडियाज़ से, थोड़ी ना वो वेल्दी हो जाएंगे, भूखे ही मरने वाले थे. बट स्टार्वेशन, इसके आइडियाज से और कुछ नहीं मिलेगा बट भूख मिलेगी.
that may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last you see. अब ये जो है आदमी जो है ये कह रहा है कि that may be a bit flowery, यानी जो नरेटर है वो कह रहा है कि ये फ्लावरी सा साउंड होता है. be a bit of flowery means बहुत ही अच्छा साउंड हो रहा है कि हम जैसे फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, राइट, ब्यूटीफुल कलर्स, बट कैसा होता है कि थोड़े टाइम के लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं लेकिन उसके बाद में जल्दी से मुरझा जाते हैं, उनकी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती है. सो एज द सेइंग इज, मतलब फ्लावरी दिख रहा है मतलब थोड़ी देर की ब्यूटी है, बाद में वो शाइन चली जाएगी, पूरा विथर हो जाएगा. सो बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स. मुझे पता है वो कि वो हमेशा अपने बूट्स के पास बैठे रहते थे, डे एंड नाइट वहीं पर बूट्स बनाते रहते थे. टू द वेरी लास्ट यू सी, अपने आखिरी मोमेंट तक वो वहाँ पर बैठकर बूट बनाते थे. आई यूज टू वॉच हिम, और मैं उन्हें देखता रहता था. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो कभी अपने आप को टाइम नहीं देते थे खाने के लिए. नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, कभी उनके पास पैसा नहीं रहता था घर के अंदर. ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा का सारा जो भी पैसा आता था पूरा इस दुकान का रेंट भरने में जाता था या फिर लेदर खरीदने में. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतना लंबा समय तक कैसे जिया हम नहीं पता. ही रेगुलरली डिड हिज फायर गो आउट, अपने भूख को रेगुलरली वो मारता रहता था. एंड ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स. तो वो तो एक कैरेक्टर ही था, वो तो एक अपने आप में एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसका मुकाबला तो किसी के साथ नहीं कर सकते. बट येस ही मेड गुड बूट्स. येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स. तो नरेटर कहता है कि हाँ ही मेड गुड बूट्स. तो ये जो चीज़ है ना, जो ये ऊपर जो लाइन लिखी है, ये सब उस आदमी ने, इंग्लिशमैन ने नरेटर से कही थी. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हो लिंक में. तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में. तब तक के लिए थैंक यू.